We were seeing in our last session how Moses did everything exactly as the Lord commanded, and the glory of God came upon that tabernacle. और हमने पिछले सत्र में सुना कि किस प्रकार से मूसा ने जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी वैसा का वैसा किया और परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरी. For many years, from the time I was born again, I wanted to try and understand what is the mark of a New Testament church. और जब से मैं विश्वास में आया तब से लेके मैं ये खोज में था कि नए नियम की जो कलीसिया है उसका चिन्ह क्या है. Well, as soon as I was converted, I joined a group which called itself Following the New Testament Pattern. और जैसे ही मैं विश्वास में आया तो मैं एक कलीसिया से जुड़ा जो कि नए नियम के अनुसार जीवन जीते हैं. But I found a lot of things, even though there were good teachings there, a lot of the spirit seemed to be a bit dead. लेकिन वहाँ पे अच्छी शिक्षा तो देते थे लेकिन वहाँ पे आत्माएं जो है मरे हुए समान थे. So when I looked at this Old Testament tabernacle, I said, what is the mark of that God was with them? और जब पुराने नियम के तंबू के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं ये देख रहा था कि क्या चिन्ह है उनका. So if you study the tabernacle, there are about 10-15 chapters of it in the book of Exodus. और वहाँ पे तंबू के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे जो है 10-12 ऐसे चिन्ह दिए हुए हैं. There were details in those chapters of how the boards and the curtains and all must be. और वहाँ पे जो सामग्रियाँ बनाई हुई है वो किस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ का कर्टन किस तरह से होना चाहिए, ये सब विवरण वहाँ पे दिया हुआ है. The length and size, everything is given. और उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है. So those days, the Philistines or some other countries could have made a tabernacle exactly like that, very easy, because the details are given there. और वहाँ पे सब विवरण दिया हुआ है, इस कारण से फलस्तीन लोग ये सब भी वैसा एक मंदिर बना सकते थे. Like if an architect gives you the drawing of his building, anybody can go and build it. और जैसे आर्किटेक्ट होते हैं वो किसी तरह का माप बना के देते हैं और कोई भी उस बिल्डिंग को इमारत को खड़ा कर सकता है. Even today, there are people who have copied that pattern of the tabernacle described in Exodus and made one exactly like Moses made it. और जो परमेश्वर का तंबू है जैसे मूसा ने बनाया वैसा का वैसा है, कई लोग उसका जो है कॉपी करके वैसा बनाने की कोशिश करते हैं. So copying a pattern is easy. और किसी चीज का नकल करना आसान काम है. But there was one thing in the tabernacle nobody could copy. लेकिन वहां पे एक ऐसा चीज है विशेष तौर से वो कोई और नहीं कर सकता. Philistines nobody could copy. और फिलिस्तीन लोग है वो कोई भी नकल नहीं कर सकते. That was the fire and the glory of God from heaven resting on top of that tabernacle. और वो है जो पवित्र आग, परमेश्वर की जो आग है वो उस तंबू पर उतरता था. वो even the people who make one tabernacle like Moses did today, you can't duplicate that fire. आज के दिन में भी जैसे मूसा ने तंबू बनाया वैसा आज भी आप बना सकते हैं लेकिन वो आग को आप नकल नहीं उतार सकते. So imagine that if 20 different nations made a tabernacle just like that. ऐसे मान लीजिए कि 20 देश ने मिलकर वैसे अलग-अलग जो है परमेश्वर के तंबू बनाए. There are 20 tabernacles there in the wilderness. You're trying to find out which is the real one. और आप देखिएगा 20 जंगल में जो है 20 अलग-अलग तंबू बने हुए हैं. अब आप ढूंढना चाहते हैं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली. Perhaps 100 nations made tabernacles like that. हो सकता है कि 100 देश जो है अलग-अलग ऐसे तंबू बनाए. How will you find out which is the right one? तो आप कैसे उसका पता करेंगे कि कौन सा नकली है कौन सा असली है? Very easy. बहुत आसान. Which one has the fire on top? और किस तंबू के ऊपर परमेश्वर की अग्नि उतरा हुआ है. So, thus I discovered what the New Testament pattern church is. और इस प्रकार से मैंने पहचाना कि नए नियम के अनुसार कौन सा कलीसिया है. And I looked for a verse. और मैंने उसके लिए एक वचन ढूंढा. I always like to find a support in scripture for anything I believe. और कोई भी कार्य होता है मैं उसके अनुसार जो है एक वचन भी ढूंढता हूँ. Everything. Whenever I think of something, I say, if I can't find it in scripture, it's just an idea in my head. और अगर जो वो वचन में नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मेरा विचार है. So I turned to 1 Corinthians 14 where it speaks about a New Testament church meeting. और यहाँ पे पहले करंथियों 14 अध्याय में दिखा कि किस प्रकार से जो है पहले शताब्दी या पहले नियम जो है नए नियम के कलीसिया मिलती थी. Even in the early, throughout the scriptures, this is about the only chapter that describes a church meeting. और यही एक ऐसा किताब है जहाँ पे लिखा हुआ है कलीसिया के जो सभा है उसके बारे में. And I saw something there. और मैंने वहाँ पे कुछ खोज निकाला. You know, the whole church, verse 23, assembles together. और पूरे कलीसिया में जो है 23 लोग वहाँ पे मिलते थे. And verse 23. और 23 में. And then in verse 24, an unbeliever or an ungifted man enters there. और वहाँ पे 24 में हम देखते हैं कि एक अविश्वासी या अनपढ़ वहाँ पे प्रवेश करता है. So he's not a man who's prejudiced in favor or against this group.
और वो उसके पक्ष में या उसके विरोध में ऐसा कोई नहीं है। He's a total stranger coming into the church. केवल एक अविश्वासी व्यक्ति वहां पे प्रवेश करता है And he hears the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को सुनता है That one or more people are speaking. और एक या एक से अधिक लोग वहां पे बात कर रहे हैं। The secrets of his heart are disclosed. और जो उसके भीतर जो है वो उसका परेशान करने लगते हैं। He begins to discover, verse 25, the things that are hidden in heart are exposed to him. और उसको पता चलता है कि उसके मन की जो भेद की जो बातें हैं, रहस्य की बातें, वो प्रकट हो गई You know, हैं। that means hidden sins in his life which he never even thought of are revealed to him by the word of God. इसका मतलब ये कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो छुपे हुए जो उसने कभी महसूस नहीं किया, ऐसे छुपे हुए भेद की जो पाप हैं वो प्रकट हो गए। That's not because the preacher knew about his private life. वो इसलिए नहीं कि जो प्रचार करने वाला उसके भेद की या रहस्य की बातों को जानता है, But because the Spirit of God was upon that preacher, he began to speak things that were directly related to that person. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस प्रचारक के ऊपर होने के कारण वो उसको समझ गया और उसने उजागर किया उन बातों को। I remember once when I was speaking in some church in the United States. और मैं अमेरिका में एक बार ऐसे प्रचार कर रहा था। I hardly knew anybody in that congregation. और वहां पे मैं किसी को नहीं जानता था। As I was greeting people at the door, और जैसे ही मैं सबको जो स्वागत कर रहा था दरवाजे पे खड़ा होकर, one man came to me and said, "Who told you about me?" तो एक व्यक्ति मेरे पास आकर बोला कि तुमसे मेरे बारे में किसने कहा? I said, "Nobody told you about me. I don't even know who you are." और मैंने कहा कि मैं जानता भी नहीं हूँ आप कौन है और किसी ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। Obviously, there were things in his life that God disclosed. और वो ईमानदारी से माना कि परमेश्वर ने जो प्रकट किया। That's not the final thing. It says in verse 25, he will fall on his face and say, "God is here." और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। So I saw that is the mark of a New Testament church. और यही नए नियम कलीसिया का एक चिन्ह है। Not whether you sing and then pray or you pray and then sing. ऐसा नहीं कि आप गीत गा रहे हैं फिर प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं गीत गा रहे हैं। Or 3 songs and then a message. कि 3 गाने उसके बाद संदेश। Or message comes first and then the song. या फिर संदेश पहले और गीत These are बाद all में। patterns. ये सिर्फ एक जो है रीति रिवाज I है tell you honestly, they are unimportant which way you do it. और इनकी कोई प्रमुखता नहीं है। But at the end of a meeting, लेकिन आखिर में, उस सभा के आखिर में, if people can go away and say, "Boy, Jesus spoke to me." क्या वो लोग वापस जाकर ये बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात किया? He was in the meeting and he spoke to me. I couldn't see him, but he spoke to my heart. वो उस सभा के बीच में था और मैंने उसको नहीं देखा, अदृश्य था, लेकिन उसने मुझसे बात किया। He not only convicted me of my sin, but he gave me hope and encouraged me. ना केवल उसने मुझे जो है मेरे दोष या मेरे पापों को बताया, लेकिन उसने एक आशा भी दिया। I've often thought that my job as a preacher is like a surgeon in an operating theater. और मैंने कई बार ऐसा सोचा कि जैसे कि जहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ के एक सर्जन डॉक्टर की तरह है। And the congregation is like a patient that's got cancer, say, in the stomach. और जो लोग वहाँ पे आते हैं वो लोग कैंसर से पीड़ित मरीजों के समान हैं। So my job is to, be pretty firm and cut open the stomach. और मेरा काम ये है कि उनके जो पेट के अंदर जो कैंसर है उसको काट कर बाहर निकालना। Not just to rub some ointment and send them home. केवल उसमें थोड़ा तेल वगैरह लगा के घर वापस भेजना Because the नहीं, guy still got the cancer then. क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर फिर भी वही कैंसर So है। a surgeon who loves the patient will use a knife. और जो डॉक्टर उसको प्यार करता है, पसंद करता है, वो जो है चाकू लेकर उसको काटेगा। A real servant of God will use a knife. और असलियत में परमेश्वर भी जो है वो उस चाकू का इस्तेमाल करेगा। Because the Bible is like a two-edged sword. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर का कलाम है वो दोधारी तलवार के समान है। And I cut open the person. और जब मैं उस व्यक्ति को काटता हूँ, open it up and expose the cancer. और खोलता हूँ और उस कैंसर को निकालता हूँ, And get rid of it. और उसको छुटकारा मिलता है। And stitch it up. और उसके बाद सीलता हूँ। Give the patient a painkiller. और उसको दर्द से मुक्ति के लिए दवाई दूँ। And wait till he wakes up from his anesthesia. और जब वो बेहोशी के हाल से जाग जाएगा, And encourage him and say, "There's hope for you that you can live long now." और उसके बाद एक प्रोत्साहन देना है कि क्या कहते हैं, अब तुम आगे जी सकते हो करके। Now some preachers only speak about sin. कई प्रचारक ऐसे हैं केवल पाप के बारे में प्रचार करेंगे And they discourage people. और लोगों को That's निरुत्साहित like करेंगे। cutting open the stomach and say, "Okay, here's the cancer, now take him out."
इसका मतलब ये है कि मरीज वहां पे है, उसका काटा पेट और उसके बाद बोलते हैं कि ये कैंसर है, इसको बाहर निकाल दो। There's a stupid surgeon who does that. और कोई बेवकूफ डॉक्टर होगा जो ऐसा करता है। So the purpose is that people find hope that they can be free from the things they are slave to. और ये उद्देश्य ये है कि लोग एक आशा को पाए कि वो छुटकारा पा सकते हैं। Jesus is always an encourager. और यीशु मसीह खुद जो है लोगों को प्रोत्साहित See, करते that's थे। the difference between new covenant and old covenant. और यही भिन्नता है पुराने नियम में और नए नियम में।